Assalamu alaikum everyone and welcome to today's session of On Air with Boss. Our guest for today is Shamsul Arfeen Hashmi. Arfeen is an international visual artist, actor and singer from Rahim Yar Khan, currently based in Lahore. A graduate of National College of Arts, he completed his bachelor's degree in fine arts with a major in painting in 2019. Since graduating, he has established himself as an emerging contemporary artist with exhibitions across Pakistan and internationally. His work has been showcased at renowned galleries and art spaces, including Return on Art Gallery, Ijaz Art Gallery, O Art Space, and Canvas Gallery. He has also expanded his artistic practice through an artist's residency with Collabs. Arfeen's artworks have been displayed alongside works by internationally acclaimed artists such as Imran Qureshi, Damien Hirst, Sadiq Ain, and Ismail Gulji. His work was also selected for the 16th edition of the Arte Laguna Prize, further strengthening his international presence. In 2024, he exhibited at the prestigious Anima Mundi Art Festival, where his work was displayed from April to May in Venice. He also participated in the Future Stars exhibition titled Ba at the Holy Art Gallery. In addition, his work was featured in the international publication Contemporary Identities. Beyond visual artists, he is actively involved in theatre and music, with formal classical training in singing and performance. In 2019, he received the Best Actor Award from the NCA Theatre Society. Recognizing his growing contributions to the arts, he was also nominated for the Distinguished Alumni Awards in 2023. Looking ahead, he is set to participate in World Art Dubai in November 2026 in collaboration with International Studio of Art and Galleries. Arfeen, can you please walk us through your journey at Beacon House? I joined Beacon House from pre-nursery and I graduated in year 2012, Sadiqabad campus. How was your experience in that campus? मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो I was like introvert, थोड़ा shy सा, लेकिन वो ये कि I was a good observer और उसके अलावा जो आर्ट और म्यूज़िक की जो एक्टिविटीज़ थी मैं उनमें काफ़ी इंटरेस्टेड था. फिर वो जो जर्नी थी, स्पेशली जो टीचर्स थे, हमारे मेंटोर्स थे वहाँ पे, वो काफ़ी सपोर्टिव रहे. उन्होंने एक्सप्रेशन का वो मौका दिया. एक तो छोटा सा शहर था, सब एक दूसरे को जानते थे. तो मैम वहीदा मज़हर, उनका नाम मैं ज़रूरी लेना चाहूँगा कि एक फैमिली की तरह से एक जो है ना वो इन्वायरमेंट था. So, since you mentioned that, it's a small town, and from what we understand, it's mostly like a feudal background and a political sphere. So what kind of support did you get when you wanted to get into the profession in which you are? सबसे पहले तो पेरेंट्स दे वर सपोर्टिव के अगर आपने आर्ट ही करना है तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से करो. आई रिमेंबर के विंसेंट वैन गॉग की एक पेंटिंग थी जो कि मुझे आर्ट के पीरियड में दिखाई गई. तो वहीं से मेरे अंदर एक जो है ना वो उसको रेप्लिकाज पेंट कर रहा हूँ और इस तरह से. फिर एक आर्ट फेयर हुआ बीकन हाउस में और मैंने प्राइज़ भी लिया उसमें. तो वो पेंटिंग मुझे याद है कि वो जो स्पोर्ट थी कि बेशक हमारी जो मैम वहीदा थी जो उस वक्त पे डीन थी, तो उन्होंने आके इतना जब अप्रिशिएट किया और आर्ट टीचर्स, तो ये स्पोर्ट साथ चलती रही. फिर चाहे परफॉर्मेंसेस में थिएटर हो रहा है या उसके बाद जो क्वायर सोसाइटी है उसमें अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो एक पूरा फ्रेंड्स की तरफ से एक पता था उनको कि अच्छा ये आरफीन ही करेगा. So, आप अपने कोई टीचर्स या फ्रेंड्स के साथ इन टच हो? यस, अभी तक हमारी जो डीन थी, उसके अलावा हमारे HODs, फिर उसके अलावा अभी जो मास्टर क्लास के लिए भी मैं वहाँ पे गया. फिर परफॉर्म भी किया मैंने, म्यूज़िक गिग किया हम लोगों ने वहाँ पे अपने ही स्कूल में. तो रहता है बिल्कुल वहाँ पे. So how was that feeling going back to your school and performing over there? बिल्कुल एक अलग ओवरवेलमिंग सा एक रिस्पॉन्स भी मिला कि वहीं पे जहाँ पे आपकी सारी कम्युनिटी, दोस्त, फ्रेंड्स थे और फिर आप पे बैक कर रहे हो उस जगह को, तो मेरे ख्याल से वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था. What kind of student were you? नॉटी, लेकिन इंट्रोवर्ट टाइप, लेकिन वही होता है ना कि जैसे पता नहीं चलने देना, तो इस तरह से जी. और फ़नी, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, तो वहीं से ही तो इसी तरह से, लेकिन ओबीडियंट.
बहुत Okay. ज़्यादा डिसिप्लिन्ड। So, can you tell us about one naughty incident that you remember? कि एक बार हम लड़ रहे थे तो अभी टीचर नहीं आई थी हमारी क्लास में, तो मेरे ख्याल से कोई और टीचर एंटर हुई और मुझे लगा कि मेरी शायद फ्रेंड्स हैं वो एंटर हो रही हैं, तो हमने डस्टबिन उनके ऊपर तो ये वो फेंक दी। तो उसके बाद जो हुआ मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन ये मुझे बिल्कुल एक याद आ गया इंस्टेंट। Arfeen, can you tell us about your fondest memory from that campus? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज पे मिमिक्री की थी। Okay. अपनी ही टीचर्स की। किसी को नहीं पता था कि मैं मिमिक भी कर सकता हूँ और मैं स्टेज पे इस तरह से परफॉर्म भी कर सकता हूँ। तो मैंने पूरा कैरेक्टर में आके जब वो किया था, तो वो जो ऑडियंस की तरफ से, और वो खुद मैम इतना इन्जॉय कर रही थी उसको, और पूरा उसका एक कैंपस में एक सेलिब्रिटी और स्टार टाइप एक वो मुझे मिला उसी कैरेक्टर की वजह से। तो मुझे वही याद है। Is there any one canteen snack that you miss till date? बिल्कुल समोसा वहाँ का। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद था स्कूल टाइम पे? मैथमेटिक्स। मैं कैलकुलेशंस में पढ़ ही नहीं सकता, Have you ever napped on campus? लाइक रेयरली, लेकिन किया है बिल्कुल। What is the weirdest place that you napped on in campus? अगर पीरियड नहीं है तो कई बार ऐसा हुआ है कि टेबल साथ जोड़ के हम तो फिर बाद में पकड़े भी गए। So, if your campus life was a movie, what would the title be? मोहब्बतें। Okay. मेरा कैंपस मुझे जो अभी तक याद है, बॉलीवुड में से मुझे एक वो याद आ रही है कि मुझे वो डीन से भी वही फील आती थी, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वैसे ही। If your campus life was a song, what would the song be? धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई वो आगोश में लो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। Mashallah, mashallah. Thank you. That was really, really nice. Thank you. So, Arfeen, if somehow you got hold of Aladdin's lamp and the genie could grant you 3 wishes, what would you wish for? मैं तो उसे कहूँगा कि बहुत बड़े स्केल पे एक आर्ट स्टूडियो, बहुत सारा आर्ट मटेरियल, बाकी मैं खुद कर लूँगा। So, Arfeen, who is the unsung hero of your life? माय डैड। उनमें असल में ये चीज़ थी कि पेंटिंग और म्यूज़िक वो करना चाहते थे, लेकिन वो कहीं पीछे रह गया, जिम्मेदारी और वो वाला सीन। लेकिन आई गेस कि उन्होंने बग़ैर एक्सप्रेस किए उन्होंने वो चीज़ अब नज़र आती है कि जो वो नहीं कर सके उन्होंने वो सब मेरे से करवाया। And who is your idol? बहुत सारे नाम हैं, स्पेशली जो आर्ट की फील्ड में है। पहली इंस्पिरेशन विंसेंट वैन गॉफ, फिर एंसम कीफर हैं, इस वक्त आर्टिस्ट हैं, गेरहार्ड रिक्टर, फिर पाकिस्तानी आर्ट में इमरान कुरैशी, शाजिया सिकंदर, चित्रा प्रीतम एक आर्टिस्ट हैं। बहुत एक लिस्ट है जो कि फिर उनसे सीखने का भी मौका मिले भी और उनके साथ कोलैबोरेट भी किया। जब आपने अपने आइडल्स के साथ कोलैबोरेट किया and you had your work showcased right next to theirs, so how was that experience for you? बिल्कुल, वो भी एक काफ़ी ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि बचपन में जिनका काम देख देख के हम बड़े हुए या इतना सीखे, फिर उन्हीं से ही सीखने का मौका मिला। एक टाइम था जब इमरान कुरैशी ने मेरा शो क्यूरेट किया कैनवस आर्ट गैलरी में, तो फिर उनके साथ काम भी, डिस्प्ले भी हुआ, उन्होंने कलेक्शन में भी अपना वो रखा काम। तो ये मेरे ख्याल से माइलस्टोन्स थे जो काफ़ी ओवरवेलमिंग थे। फिर अभी भी हमारे जो क्यूरेटर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, तो वो चल रहे हैं कोलैबोरेशंस। So आपको पता है ना कि आजकल का हमारा जो वर्ल्ड है दैट इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग AI। बिल्कुल। और एक डिबेट है दैट AI इज़ गोइंग टू टेक ओवर ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इज़ गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमंस।
Are you fearful for your profession as well? मैं तो और खुश हूँ इस बात से कि जो एक्सप्रेशन जो, और मुझे लगता है कि जितना वो ओरिजिनल काम की और भी वैल्यू बढ़ने वाली है। और एआई कैसे करेगा कि जब एक काम में इमोशन कैसे आएगा, जो स्ट्रोक एक आर्टिस्ट ने लगा दिया है, जब हम खुद भी नहीं लगा सकते वो दोबारा। तो वही बात है कि हमें तो कोई इस चीज़ से कोई इनसिक्योर नहीं है। हाँ, हेल्पफुल है, अच्छे तरीके से आप उसको यूज़ करें, टूल्स हमारे लिए भी, आर्टिस्ट के लिए भी हम उसको इनोवेटिव तरीके से अगर यूज़ करें तो वो हो सकता है हमारे आइडियाज़ कहीं और जो है ना उस पे जा सकते हैं स्केल पे। Mashallah, you seem like a very, very passionate individual. Is there a driving force behind that passion? जब बचपन से ही आपको एक ही चीज़ की वो लाइक है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, मेरे ख्याल से ये डेडिकेशन और ऑब्वियसली लोगों की सपोर्ट, प्यार, तो वो अच्छा लगता है। So Arfin, लोगों का जनरल एक परसेप्शन होता है अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन कि दिस इज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। सो अगर किसी ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना हो टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, सो यू नो व्हाट इज़ योर गाइडेंस फॉर दैट? आपका जुनून की हद तक कोई शौक़ है तो मेरे ख्याल से चाहे आप म्यूज़िक कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो लोग जानना शुरू हो जाते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, कलेक्टर्स भी हैं, गैलरीज भी हैं। आप जब काम करते हैं इनकम भी होती है। बहुत मिसालें हैं हमारे सामने ऐसे आर्टिस्ट की जो बिल बोर्ड्स और इन चीज़ों से वो आए थे छोटे छोटे टाउन से, और आज माशाल्लाह वो सेलिब्रिटी हैं और वेल नोन आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के। Arfin, is there any one myth about your profession that you would like to debunk? हमारे प्रोफेशन के बारे में जो मिथ है एक, वो ये है कि ड्रग्स यूज़ करके शायद आर्टिस्ट काम कर पाता है और उसके बिना शायद रह नहीं पाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका आर्ट ही सबसे बड़ा नशा होता है आपके लिए। जब आप काम कर रहे हैं ना और कंसिस्टेंट होके, और आपका विजुअली जब काम इतना स्ट्रॉन्ग हो कंसेप्चुअली, तो आई गेस गैलरीज खुद पकड़ती हैं आपको। मेरे साथ खुद मेरा इंटरनेशनल पहला जो शो है, मुझे किसी ने, मैंने अप्लाई नहीं किया था, मुझे खुद गैलरी के डायरेक्टर ने मेल करके अप्रोच किया था। Amazing. तो आप यहाँ, मुझे यहाँ से फिर वो एक लगती है ना, तो मैं वही बात करता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। Do you have a message for the students who want to pursue art as a profession? अब एक्सप्रेशन के बहुत ज़्यादा हमारे पास मीडियम्स हैं, बहुत मीडियम्स हैं। अब आर्टिस्ट किसी वो पेंट और कैनवस तक नहीं रह गया। आपको पहले तो बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना ही मेरे ख्याल से जो है ना आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। अगर आपने ज़रा भी वो सोचा कि अब ये कर लेता हूँ, अब वो कर लेता हूँ, थोड़ा डगमगा गए, तो फिर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है आर्ट में। What is your message for the current students of Beacon House? जो भी करें बहुत दिल लगा के करें और जुनून की हद तक करें, तो फिर ही मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और हमारे पाकिस्तान के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम किसी भी प्रोफेशन में उसको अपना समझें और उसकी ज़िम्मेदारी से अगर उसको निभाएं तो हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, छोटा छोटा ही बेशक। Arfin, mashallah, you are an amazing person, and it was honestly very lovely meeting you. Same here. I would like to thank you for taking out time and coming on today's session of On Air with Boss. Thank you. It was an absolute honor to host you. Thank you so much. Likewise. Beacon House Old Student Society, BOSS, building a community together.